देखो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है ऑनेस्टली। देखो कि हम्म फिल्मों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप हजार बार ट्रांस 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 बात कर लो, इट मे बी नॉर्मलाइज, ओके, it becomes after a while it becomes little monotonous, it becomes too much over talked about. When someone talks about it in rural places, that's when it actually creates an impact, okay. अगर आप वर्कशॉप की बात करो, मैंने तो आज चीज को लेके भी सुना है कि वो लोग भी 1 महीने की वर्कशॉप करें। बट उन उनको तो बहुत जरूरत थी। In a week, I had to reduce like 7 kgs, and we achieved that, एक हफ्ते में which the 7 character किलो also got it. कैसे? क्या किया था? मैं सुबह उठता था, रितेश सर का फोटो देखता था, समझ जाता था भूख नहीं लगनी चाहिए। एक बात बताओ कि जितने लोगों की वर्कशॉप हुई थी उनको पेमेंट मिली थी कुछ? मैं पेमेंट बोल देता वर्कशॉप हूँ, नहीं। पेड नहीं थी ना? क्या है? यू आर गोइंग इन दी जेटी ऑटो में, बारिश में आप रोज जा रहे हो, अपना पैसा खर्च कर रहे हो। मोर देन मनी ऑल्सो यू गिविंग 1 month of your time where it's on the rope that you might or you might not. राइट। So for an actor, honestly speaking, it's a little unfair, but yeah. नॉट लिटिल, वेरी। हम्म So, guys, welcome to the dialogue. Here we are planning to create a space where we'll talk about the things that are not being talked about, I guess. Congratulations on Netflix release. Finally, आ गई सबके Thank पास। you. मुझे ना एक एक इंडिविजुअल जर्नी जाननी है, आप सबकी, जितने लोग भी है यहाँ पे, कि where do you come from? How did you like start? या फिर इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ एक्टिंग को लेके, सिनेमा को लेके? जस्ट गिव मी अ ब्रीफ सो दैट ये तो पता होना चाहिए सबको कि कौन क्या है, स्ट्रेट है कौन, कौन बाय है, कौन ट्रांस है। अभी बता दो सब क्योंकि ये डीएम्स कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। Okay, I'll make it very brief anyway. I think शुरुआत में फिल्में मेरे लिए एक बहुत ही escapism का जरिया था. I was not having the good time, the best time ever in my school or my college for so many reasons. And I think films really allowed me to delve into them and to experience another world where I was maybe accepted or maybe I was not a big deal, and things like that. And I could see more than that also. I could expand my perspective about so many things. And that became my, that escapism, and that became my everything. Films became my everything. And I was always moved by performances throughout the journey of watching the films. I was always moved. And that's when I knew that I want to do something within that line. Filmmaking was something that I felt like it's a very far-fetched dream for me right now, because it's going to take a lot. There's a lot of methods of making films. There's so many things that you have to learn. So I'm like, filmmaking maybe I'm not able to do, but the least I can do is maybe try my best to and give my auditions and be in front of the screens to challenge myself. And it's a great journey. I feel like workshops and these practices really help you not just play the part, but it helps you know yourself much more better, to know your capacities, that you can do this, you can do that. That's just crazy. It helps you in your personal life. You become more confident, I feel. And that's when it became like a great thing. And about filmmaking, it's just like I met my friend Doom Solanki, and he's like, we'll make some films, and we were like, you know what, कोई मेरे को किरदार देगा या नहीं देगा, मैं अपना किरदार लिख के अपना मूवी बनाऊंगी. So that's when it became thing, and we all just started. And you're from Rajasthan? I am from Rajasthan. Yes, I grew up in a Rajasthan village, and then for 10th I shifted to Jodhpur, and then for another college I shifted to Udaipur, but it was within the Rajasthan. That's a cute. So moving on, Paritosh, what is your journey like? 9 years in Bombay, क्या क्या किया? तो फटाक से बोल देता हूँ, मैं हूँ बिहार से, पला बड़ा हैदराबाद में। ठीक है, इंजीनियरिंग किया एज यूजुअल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का कुछ आता नहीं है। और इंजीनियरिंग में बोले गुड लुकिंग हो तो मॉडलिंग कर लिया। फिर जब मैं जॉब करने लग गया तो बोले एक्टिंग कर लो, डांस वांस तो आता ही है। मैंने बोला चलो, सब छोड़ दिया, बॉम्बे आ गया 2015 में। तब जाके रियलाइज ओ ये एक्टिंग में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बिकॉज यार, me being from Hyderabad, like all my life I've lived in the city where Bollywood is like a distant dream ना।
कि Right. क्या है, शाहरुख खान है, वरुण धवन डांस कर रहे हैं, गुड लुकिंग है, मे बी इवन आई कैन डू दैट। फॉर मी दिस वाज एक्टिंग। Right. फिर मैं बॉम्बे आया, देन आई वाज लाइक, ओ शिट यार, यहाँ पे तो बहुत कुछ करना है, ये तो पूरा समंदर है। लकीली मुझे अच्छे टीचर्स मिले हमेशा से, हाँ. some amazing teachers in my journey, OP sir, Sumit sir, a lot of people are there who thought कि cinema is this. Then I got on the correct path. थोड़ा समय लग गया, but I'm glad that अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक फिल्म की है, तो I'm pretty happy about that journey. Congratulations on that, yeah. Yeah. Beautiful. Abhinav? So I was born and brought up in Mumbai itself, and for some reason I was not considered that bright kid in schooling days, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा था नहीं मैं शुरुआत से ही until 12th standard. और फिर बाद में after that I went on to pursue hotel management, and वहां पे मेरे ग्रेड्स अच्छे हो गए, एंड along with that होटल मैनेजमेंट मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया था। पता नहीं कहाँ से एक कीड़ा आया था, मतलब कि मुझे एक्टिंग करनी है लाइफ में, हाँ. मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे ये करना है। तो पापा ने बोला था कि यार ग्रेजुएशन पूरी कर लो और जो साथ में करते रहना है वो करते रहो। तो एक फेज था मेरा कि मैं 3 बजे तक कॉलेज में रहता था दोपहर के, और 4 बजे थिएटर पहुंचता था, 8 बजे तक थिएटर करता था, फिर घर जाता था, फिर अगले दिन की तैयारी वैसे। सो ये 3 साल तक चलता रहा। फिर उसके बाद में मैंने जॉब की एज एन बारटेंडर जेडब्ल्यू मैरियट में। Okay. उसके 6 महीने तक कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, थिएटर भी साथ में चल रहा था, वो भी छूट रहा था धीरे धीरे करके। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, बंद करो ये सब। सब बंद किया, और फिर वापस आया, मतलब कम्प्लीटली थिएटर की तरफ। और ऑडिशंस दे रहा था, टीवी कर रहा था, काफी दिनों तक टीवी किया है मैंने, 1 साल तक टीवी भी करा है। Wow. सो फिर मतलब मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी तो मैंने 1 डेढ़ महीना टीवी किया, उसके बाद वो भी निकल गया हाथ से। फिर हाँ. मैंने ऐसा सोचा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ बचा ही नहीं है। थिएटर करे जा रहे हैं 2-3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अब हो गया, अब थोड़ा सा मतलब वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होने लगती है ना, कि मतलब मैं बड़ा हो रहा हूँ, हाँ. पापा मम्मी हैं बट मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना है ना। तो Yeah. आई वाज लाइक कि मे बी प्रोबेबली अब टाइम आ गया कि बाहर जा करके, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। सो इट इज अ लाइसेंस टू ऑल ऑफ द होटल ग्रेड्स लाइसेंस टू मूव आउट ऑफ इंडिया एंड वर्क एंड फॉर अ डिसेंट अमाउंट। मैंने सोचा था कि बाहर जाकर के देखते हैं, कुछ शायद वहां पे हो जाए। तो वो हो ही रहा था, और अनलेस ये एक्चुअली लास्ट ईयर इसी टाइम पे ये सब चल रहा था, एंड एक हफ्ते के अंदर कॉल आता है मुझे कि आप LSD 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आ जाओ, हाँ. और आपको क्या कहते हैं वर्कशॉप करना होगा इतने इतने दिन तक। एंड फिर 27 जून को मेरे तेज से मिला। Wow. बारटेंडर की नौकरी करते हुए अभिनव यही आज snippets एलएसडी के टू लिए वो वायरल करा रहे हैं, फुल ये है फुल मेरा मून फुल मार्केटिंग प्लान. फुल 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 मून की आवाज। बिल्कुल, यही snippet तो बाहर भेज रहे हैं मेरे को निकाल निकाल के, कैसे बने अभिनव फ्रॉम अ बारटेंडर टू अ लीड. मैं भी एक्टिंग से स्टार्ट करूंगा अपनी लाइफ। उसके बाद मैं पैदा हुआ बिहार में बट रहा मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वही जर्नी चलती रही। उसके बाद मैं सीधे आता हूँ कि मैंने फिल्म कब बनाया। फिल्म 2010 में बनाई मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री द होली वाइफ्स करके, जो कास्ट बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे बात कर रही है। बेड़िया बाछड़ा समुदाय। और बहुत वो 2010 में फिल्म हुई, मैं कॉलेज में था और मैं वो में इमोशनल था, और मुझे लगा था मुझे ये कहना है, ये बात कहनी है। और उस समय कोई फेस्टिवल नहीं थे, उस समय मैंने मिनी टीवी पे शूट किया था, और Yes. बिल्कुल सिनेमा का आइडिया नहीं था। आई जस्ट शॉट द फिल्म एंड द फिल्म फिल्म इज अवेलेबल। फिल्म बहुत जगह पे स्क्रीन हुई, एनजीओ ने स्क्रीन किया, वहां पे लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद 2014 में मैंने दूसरी फिल्म बनाई ऑन ट्रांसजेंडर्स एंड अंडरस्टैंडिंग दिस होल जेंडर इशू, रेनबोज आर रियल करके। वो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था और बना करके यूट्यूब पे डालना था, बिकॉज आई डिड इट फॉर अ फ्रेंड। आई रियली Okay. वांटेड टू नो पर्सनली। और आप कई लोगों से मिलते हो, कई कमाल के लोगों से, प्यारे लोगों से मिलते हो। तो लेज़ी टू ने मुझे बहुत कुछ प्यारे लोग दिए, दिवाकर जैसे मेंटर और डायरेक्टर हु इज ट्राइंग टू ऑलवेज वर्किंग एंड समथिंग दैट ही बिलीव्स इट। एंड आई सॉ दिवाकर वर्किंग ना, इतना मेहनत और इतना इतना प्यार से एक Shows. सिनेमा It को बनाते really समय shows. करना। तो प्रोसेस में क्या फिल्म बनी, कैसी हुई, बट वो प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट, बीइंग इन्वॉल्व विद हिम एंड सीइंग हिम, वो मुझे बार बार मन करता था उनको एक हग कर दूं, झपियां दे दूं। जब भी वो एक बहुत सारा, क्योंकि एक बहुत प्रेशर चलता है
सिनेमा, चाहे मैं इंडिपेंडेंट में प्रेशर देखा, मैं एज अ डायरेक्टर मैंने वो की, देन आई सॉ इन द कमर्शियल जोन जहाँ पे प्रेशर मुझे लगता था थोड़ा कम होता है और प्रेशर और बढ़ जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर सीइंग, तो वो हालत में और वो जब दिखा है, बट मैं उसका पार्ट हिस्सा बना और इन बहुत प्यारे एक्टर्स के साथ काम किया, टीम के साथ काम किया, तो जर्नी मजेदार है। होपफुली जो भी मैंने सीखा, काम किया और आगे फिल्म बनाना चाहता हूँ, उस पे मैं बहुत कुछ ऐड ऑन होगा हियर व्हाइल वर्किंग ना, सब थैंक गॉड की काम करता रहूंगी। नेक्स्ट फिल्म के लिए पैसा भी कब देंगे लोग मुझे पता नहीं, बट या द गुड पार्ट इज की काम करता रहा, और बिकॉज वी एलएसजी 2 आई एम स्टिल देयर। मुझे ना सबसे पहले तो ये सवाल पूछना था कि कास्टिंग का प्रोसेस क्या था, लाइक हाउ डिड यू गाइस अप्रोच, वर देयर एनी कास्टिंग एजेंसी या कैसा था, या फिर खुद ढूंढा था, वाज इट लाइक? फर्स्ट आई थिंक वनीता। मेरे लिए कास्टिंग का ऐसा था कि casting day was working on it, and they sent me one script one day on my WhatsApp, and I just like tried it. I'm like, चलो let's see, देखते हैं होता है या नहीं होता है, just in what's going on. But उसके बाद में there was a long process of basically doing multiple auditions. One after two were taken by me, different scripts. Me and my sister were doing the scene. Basically, she was helping me out. उसके बाद में they called me to Mumbai to do the scene, and then we had audition there as well. And like they were very nice. So I had a good experience with the casting team. They were very appreciative, encouraging. Even I did not believe in myself. उसके बाद में we had to I had to auditions over Zoom as well. So it was a long process, and then it was decided that we'll have a workshop, and then we'll know after a month or two whether we are finalized or locked or not. So that was the entire casting procedure for me. And how many were shortlisted for the particular role? For I the mean, work? in the end, there could only be two people. So हाँ. I think a lot of people were shortlisted, but in the end, there were only two people. I think with me, it was three. Shubhi and Shamita. Ritesh will know better how many were shortlisted. Ritesh sir might know better. Yeah. And what was it like for you, Paritosh? For me, it was a pretty regular thing. Like I got this call saying that okay, ऐसा character है. For me, मैंने सोचा कोई secondary character ही होगा. So as usual, every week we get calls for auditions and stuff. अभी भी एक intro दे के हटा हूँ. तो आया call and दिए audition. फिर एक दिए, दो दिए, तीन दिए, चार दिए. It was what I gave around. I guess I gave around 10 to 12 auditions हाँ. before entering the workshop with the other person. And once that happened, then two of us workshop for almost a month, and then I got the part. So it was a casting day. It was Rahul Katar and Anmol Ahuja who thought that I could, you know, be okay to अच्छा. audition for this, and then yeah. So what was your brief, कि क्या चीज पे फोकस था, लाइंस पे था या फिर कैरेक्टर पे, किस पे? लाइंस पे मैं ज्यादा फोकस करता नहीं इन जनरल, मतलब फॉर मी इट्स ऑलवेज द कैरेक्टर, वो ही आएगा तो बाकी सब तो ऑर्गेनिकली आ ही जाता है। हाँ. पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मुझे मिला ना ऑडिशन, तो मुझे लगा कोई सेकेंडरी कैरेक्टर है, तो आई वाज नॉट लाइक रियली फोकसिंग बहुत कुछ करना है इसमें। रीटेस्ट हुआ जब, बाद में जाके फिर जब वर्कशॉप्स हुए तब मुझे पता चला कि इट इज अ सेकेंडरी, सॉरी इट्स अ प्राइमरी पार्ट। So that is when I understood that it is something very important. Until then I was like ठीक है, कोई character होगा, Big Boss का setup type है, might be one of the contestants or so. हाँ. And I thought yeah, that will be it. So I was pretty normal in approaching the audition also, and I was working on the character more than the lines, and it just went on. ऐसा था। And Abhinav? So for me, it was like completely different. I was there at casting bay auditioning for another part, for another movie, I guess. Yes, it was a movie. And there happened to be one of the casting associates, and he was like, I think you might want to audition for it. I asked him, I want to. That was my reaction. Like, why wouldn't I want to, audition for it? And then he was like, okay, then we can schedule something out of that, for that. So one Sunday afternoon, Shivani calls me, even she's in the film.
and she's like, Abhinav, we want to test you for this part, and it is the lead, and probably you might get the part. And I was like, nobody says that. Nobody says that you might get the part. So on a Sunday afternoon, I recorded the audition, and then further on, I gave like 4 or 5 audition tests for the character, and then later on with Ritesh sir, I was having one of my companion who was also competing for the same character. His name was Devansh, and I mean, it went on really rigorous at that time. And Ritesh sir would be the best person to explain that. I saw How you the guys process. crying, all of you. So, Literally, Ritesh yes. sir, आप कब आए picture में? I think 1 साल हो गया exactly. Me and Dibakar, we talked. I was in mountain. मैं यही mountain में ही था. Somewhere in April. Yeah. हाँ. So April में we discussed about the whole thing, and I joined it was fun. How we both met. We met at Jini Mini Chadaria screening, and after that the discussion started. We watched the film, and I remember he said ki I too don't have any Twitter or Instagram, so I can't write about the film. I'm not on social networking sites. So then we discussed about. I read the script. I said okay, it would be nice to, because acting is something I really love. I'm working with actors, and उनके साथ वो प्रोसेस, वो काम, जिस तरीके से मैंने जिनी मिनी चदरिया में भी एक एक ट्राई कोशिश किया था. एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड मीटिंग विद प्रतीक शुभम आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, एंड देन वी डिड लॉट ऑफ चैटिंग टुगेदर. बहुत सारी बातें हुई स्क्रिप्ट को लेकर के, बहुत सारा डिस्कशन हुआ. एज अ सेकंड यूनिट डायरेक्टर क्योंकि मैं पार्ट था, तो वो भी मुझे एक हेल्प मिल रहा था, बिकॉज इट्स नॉट लाइक ओके आई हैव टू वर्क विद द एक्टर्स एंड डन, ये चलेगा. इट्स लाइक द फिल्म. So I was going through and kind of understanding Debakar's process also, trying to get into my process. तो एक लंबा प्रोसेस चला है, पूरा सिलेक्शन का बहुत लंबा प्रोसेस चला. उसके बाद सिलेक्ट हुए, उसके बाद इनकी एक लंबी वर्कशॉप हुई थी, जिसमें 2 लोगों की वर्कशॉप हुई थी. के बारे में बताओ आप, मतलब उसके बारे में पहले तो मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो आया था हाँ, और बहुत वो ही बेटर है. ज्यादा रो रहे थे आप लोग, मतलब कैसा क्या प्रोसेस था, रोना क्यों आ गया? वो अभी रितेश से सामने बैठे कुछ बोल नहीं सकते. नहीं नहीं, इसीलिए प्लीज मैं कह रहा था इससे कि रितेश मेरे सर की बिना लो बुराई ये करनी है, सारा. कैसे करेंगे अपन? हाँ, बिल्कुल करो, प्लीज गो सामने फॉर इट. करो, अब हो गया, फिल्म हो गई. अब अरे नहीं मैं यार, यही बोल रहा था कि देखो, मेरे बिना करो तो वो खोल करके बताएगी वनिता, बिना पारी सब, वो तो स्पेशली तुमने वनिता. बोल चुके हैं वैसे तो हम लोग कई बार पहले. हाँ, आपके साथ हुआ कई नहीं बार है हम बात पब्लिक, कर चुके, तो कई बार हम हाँ, बात कर it's nice चुके. also that you're here. We are doing it for the first time. हम्म. Anyway, the thing is कि with the exhaustion, I can only speak for myself. ये देखो, the thing is कि first of all, ये जो the whole deal with the Kullu character is, it arises with the fact that she's trans person, and also like I am. The thing is कि her lifestyle is very different. उसका lifestyle, उसका जीवन का अंदाज, उसकी society, उससे आसपास जो लोग उसको जिस तरीके से देखते हैं वो बहुत अलग है. मुझे उस दुनिया में जाना है, you know. So मुझे उस दुनिया में जाना है, उस पल जीना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको फील करना है, और फिर उसके बाद में रिएक्ट करना है कुल्लू की लैंग्वेज में, कुल्लू की भाषा में, और कुल्लू की जिंदगी को जीते हुए. तो the thing is, the most hard part for me is to live in these very, very discomforting moments. Honestly, it's very, because you know I deal with gender dysphoria, and you know it's the thing with trans people that they have gender dysphoria. It's very extreme, and it's very, very difficult for me to explain to anybody on this planet, you know. But the thing is to live with that, in that character all the time, to emasculate myself. That was very, very, you know, I had to make my voice heavier. You know, that was I think the moment when I almost gave up. I literally almost, I'm like, I don't want to, because literally there was one day in which like I had to speak in a manly voice, and I'm very much trying, and sir getting angry also. But he was not that angry, but he was like, you know, karo, and I'm trying my best. Okay, I go to my hotel room, I go to the washroom, I always time I'm trying. The next morning I wake up with a very bad throat, you know. So the thing was, I am running away from
masculinity or these things. And in this character, these are the integral part of this character. I can't run away from this thing. You see, so usko apnana, usko jeena is like living in my past again, and to go through all these things that I have been through already, to relive these moments, Right. that is why it became too much emotionally for me after a while. It just really became too much because it was just not enough. I was too feminine. I had to become more plan towards the community that is predominantly is there in the country, which is trans major community. And I wanted to do justice to it as well as much as I could. But the reaching there is quite a traumatic process, I would say. I remember one day, like I literally broke down in front of Sir only, and Shivani was there, and I'm like, I can't do this anymore. And Sir was just like, "Kaisa lag raha hai? Kya feel kar rahi ho tum?" And at that time, I have no idea how it happened. I was not planning to do it at all, but it just happened. I just, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने को भी ज्यादा, मैं मम्मी से बात करती थी, बट क्या कितना समझा सकते हो, व्हाट यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम ही को पता है, and to carry that all of that with me, to practice that every night and day, watching those videos, it was very overwhelming after a point, I think, for me. Yeah. That's how it is. And for Abhinav, like, how was it for you? और YouTube से क्या रिश्ता, mean, मतलब character, how close was it to you? it was Or not at all close to me. On the first day, I remember Ritesh was saying, बहुत गहरी बातें करते थे हो, थोड़ा बाहर निकलो इससे. He first asked me, what is your choices? What do you read? What do you do? And that day, literally, he said me कि पहली बात तो ये character वैसा नहीं है, बहुत अलग है. And then it all became like a school. Every day he used to give me like references to watch, go and do something, and like come again the next day to like with a feedback. Yes, I found something that could work for the character and something like that. So it was more of a school for me, and working with the Bakar sir was like more of like a patient journey, like I always say. So that's how it went. It was rigorous because I also had to put down the weight, and that was the most challenging part, I guess, because we were not having a lot of time, and I was not logged in as the lead as yet when they told me that you need to reduce the weight. So उस time पे भी डर लग रहा था. And in a week I had to reduce like 7 kgs, and we achieved that, and everyone was like having like सुई की नोक पर मुझे देख रहा था कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. So also getting that attention was one of the things at that time, पर एक हफ्ते में which the पहुंच character गई also तो got. कैसे, क्या किया था? मतलब I would want some. मैं उठता था, रितेश सर की सच फोटो बता, I देखता था, was सच अभी तो खाना सच भूल जाता बता, था. सच क्या हाँ. किया, सच वही बता. सच बता रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ. also. वो बाद में. मैं सुबह उठता था, रितेश सर का फोटो देखता था, समझ जाता था भूख नहीं लगनी चाहिए. फिर सर की वर्कशॉप में जाता था, जिम जाता था, फिर वापस आता था, फिर वर्कशॉप लेता था, फिर घर आ जाता था. दैट्स ऑल. खाना नहीं खाता था. खाना नहीं खाया. नहीं, we so basically I had a diet जो कि I only had to be on a liquid diet for a week completely हाँ हाँ. to prepare. So even that also had a role in like preparing the character in a way. So yeah, that's how I Read sum with it up. lose कर दिया सर आपने, बताओ बंदों का. लास्ट डे पे बहुत ज्यादा रोए थे. जिस दिन मैं लॉक हो रहा था, उस दिन मैं बहुत ज्यादा रो भी रहा था जब वो अनाउंस किया था तन्वी मैम ने. रिमेम्बर, मैं और रितेश सर ही थे, और लास्ट का सीक्वेंस हम शायद रिहर्स कर रहे थे उस टाइम पे. वो क्यों? वहीं पर मतलब मैं सबसे पहली बार तो ब्रेक डाउन हुआ था मेरा, पूरे पूरे सेशन में मेरा पहली बार ब्रेक डाउन हुआ. और जब हुआ तो मैं रितेश सर के साथ अकेले में था, और रितेश सर सबको लेकर आ गए नीचे, एंड ही वाज लाइक, यू आर गेम पॉपी नाउ. And Paritosh. हाँ. मेरे लिए honestly speaking वर्कशॉप, it's not that I'm not an experienced actor, तो मुझे वर्कशॉप करने में बहुत मजा आ रहा था. हाँ. और मुझे इशू ये था कि यार ये दो लोगों का सिस्टम ना मुझे समझ में नहीं आ रहा. Right. और it's honestly speaking it is annoying because आप इतने सालों से हो. I have been in Bombay from like 9 years now. This is my 9th year now. And when you understand that this is an important part,
but then you are in a dilemma that you might get it or you might not get it. And for me, the result, honestly speaking, is important, no? कि अगर कल को मेरा नहीं हुआ, I बिल्कुल would be devastated. Like to the point where I might not have been like मैं audition भी नहीं देता शायद उसके बाद, अगर मैं मेरा नहीं होता तो मैं शायद 2-3 महीना कुछ नहीं करता. तो मेरे लिए वो पार्ट ज्यादा अनोइंग था कि यार ये एक को लो और आगे बढ़ो और अच्छा काम करते हैं, बिकॉज फॉर मी आई रियली वांटेड विद रितेश रियली वेल बिकॉज we were on the same page when it came to the workshop, to the exercises and everything. And I was there throughout. तो और हम लोग बातें बहुत करते थे, तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी वेरी गुड वर्कशॉप एक्सपीरियंस, वर्कशॉप वाइज, है ना. मेरा ब्रेकडाउन हुआ जब हम पहला दिन डांस पे गए थे हम लोग. हम फर्स्ट डे वेयर रिहर्सल्स वगैरह हुई और डांस दैट गंदी ताल विच यू सी. और जो आपने छोटे छोटे स्निपेट्स डाले डांस के, हालांकि हमने बहुत ज्यादा ही कुछ डांस किया था बट वो आया नहीं. बट देन व्हेन आई फर्स्ट वेंट ऑन स्टेज, दिबाकर वाज नॉट हैप्पी विथ मी and the whole dance was only not working out for him. ओके And that day I was like, dude, अभी निकाल दोगे क्या, मतलब इस लेवल पे चले गया था कि शायद मुझे लगा कि ओ शायद मुझे निकाल देंगे. तो उस दिन जिस दिन हम लोग शूट करने वाले थे, उस दिन मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से शूट नहीं हुआ. क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और था, सेट पे कुछ और हो गया, whatever reason. That very day we came back to the workshop. That is something which I would really like to appreciate. That thing about Ritesh is he came back with me. राइट रात के 10 बजे हम लोग वर्कशॉप पे डांस सीख रहे हैं एंड ही वाज देयर. एंड डांस सीखते सीखते भाई साहब मेरा ब्रेकडाउन हो गया. मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है, मुझे लेंगे कि इट वाज सो मच ऑफ पागलपन की यार. बट आई वुड रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही वाज देयर. रात के 10 बजे भी कोई भी वर्कशॉप डायरेक्टर बैठता नहीं है किसी के साथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एटलीस्ट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप डायरेक्टर्स बट they are not with you throughout, but he was there. In the night also when I broke down for half an hour, I was straight out crying, but he was there. So that is something which I felt that breakdown worked in my favor. क्योंकि उसके बाद तो there was no looking back. After that one particular night session which me and Ritesh had, there was no looking back after that. So yeah, I mean, I think it's all part of a journey which it worked in my favor, I believe. I don't know the rest. बट रितेश सर, मुझे ये बात बताओ कि कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे इतने सारे एक्टर्स हैं और यहाँ पे आपने 6 लोगों को, 6 या 7 लोगों को आपने शॉर्टलिस्ट करके रखा, आप उनके लिए अवेलेबल हो, और ये मतलब जो थोड़ी बहुत अनश्योरिटी है कि ये कैरेक्टर किसको मिलेगा, और जिनको नहीं, जो 3 लोग जिनको नहीं मिला, उनके वो टाइम का मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर अ रोल. later on I realized कि okay, मतलब first when I got to know कि इस तरीके से process चलेगा, we'll finalize 2 people for one character, और LSD 1 का भी यही तरीका था. वहां पे इसी तरीके से वर्कशॉप हुई थी और LSD 1 में 2 लोगों को चुना गया था. एक राजकुमार हुआ और एक जो नहीं चुना गया उसको हम नहीं जानते. हाँ तो ये प्रोसेस चला है LSD 1 में भी और उस तरीके से हुआ, क्योंकि फिल्म का फॉर्मेट, फिल्म का स्टाइल है, हर फिल्म का तरीका फिल्म और उसके डायरेक्टर ही डिसाइड समझ पा, मतलब ना द काइंड ऑफ फॉर्मेट है. हो सके किसी जगह पे वर्कशॉप का तरीका अलग होगा, किसी जगह वर्कशॉप का तरीका अलग होगा. यहाँ पे तो ये जब 2 चीजों मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि एक तो कैरेक्टर्स नॉर्मली आप देख नहीं रहे हो ना इन कैरेक्टर्स को. ये एक सो कॉल्ड कैरेक्टर्स नहीं है कि ये फला उससे प्यार कर रहा है, फला उसके साथ है. दिस इज हाँ नॉट, दिस इज द कैरेक्टर, दिस वेरी with so many layers that you see in all 3 stories. When you see Abhinav's character, when you see Parito's character, Bonita's character, and they are actors who are going to, मतलब वो उस कैरेक्टर को जी करके, समझ करके, उनकी लेयरिंग को समझ करके, और फिर एट द टाइम ऑफ द सेट ऑल्सो अगेन दे हैव टू बी सो फैमिलियर एंड सो अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग एवरी सिंगल. एज एन एक्टर आई थिंक कि मैं खुश था एट द एंड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले थे. मतलब एक्टर्स तो हम सब प्रोसेस में ही रहते हैं लर्निंग के और उस करने के, बट मुझे बहुत अच्छे लोग मिले थे जिनके साथ काम करना में मजा आ रहा था, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द एक्टर्स आर कमिंग विद लॉट ऑफ ना खुद से एक लोड और ईगो हाँ के साथ, तो वो आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है.
So when I started getting it, पहले तो स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारा काम होता है कैरेक्टर पे करने के. once I'm get work with Bonita, and the Bonita is, I know also कि ना, क्योंकि what happens, you understand the person because you know the character and you kind of understand the character, and you're talking to the director every day and discussing, and we are discussing, and then you are trying to understand the Bonita personally also, and as a character, what she can do, what she's good in, which process I'll use it here, and then talking to director again, Debakar, that okay, this is something that I am feeling, this is something that she can do, this is something the other character will give her. तो अदर एक्टर्स हुए देयर ऑल्सो, वो भी कुछ अलग लेकर के आ रहे थे, हर कोई कुछ नया लेकर के आता है. हाँ. आपका कैरेक्टर किस तरीके से उसमें, और आपकी कहानी में किस तरीके से वो कहानी जो कहने जा रही है किसी के, कोई किसी का बॉडी यूज होगा उस कहानी को कहने के लिए, वो कैरेक्टर बनेगा. हाँ. तो वो कैरेक्टर के लिए आप किसे चुन रहे हो, मेजरली वो सारी चीजें हो रही हैं चुनना, दैट वी गेट वी सेइंग फाइनलाइजिंग. But I think हाँ. for the Bonita's character, we finalized the other two characters. Later on, I started realizing that other characters are giving something Bonita that Bonita is really needed as a character. और जिस कैरेक्टर को हम बना रहे हैं, कुल्लू के अंदर जो कुछ चीजें हैं जो बोनीता को और समझ में आएगा, that how Bonita was saying it was exhausting, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ, हाँ. कितना ज्यादा जा सकता, कितना ज्यादा जाना कि एक्टर बिल्कुल बिखर न जाए, और इतना भी जाना है मुझे कि मैं, वो पतली लकीर होती है कि हाउ मच आई कैन टेक इट, हाउ मच द पर्सन इज टेकिंग इट, हाउ मच इज गोइंग इट, एंड मेक इट बिलीव, बिकॉज दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि द ट्रस्ट फैक्टर हैज टू कम. अगर वो बोनीता का ट्रस्ट मुझ पे नहीं आएगा, अभिनव का नहीं आएगा, या पारितोष का नहीं आएगा, या दिबाकर का नहीं आएगा, तो वो काम नहीं हो सकता. एंड दैट्स वाज इम्पोर्टेंट. तो बोनीता को बाकी कैरेक्टर से भी कुछ चीजें मिल रही थी, दैट शी स्टार्टेड टेकिंग इट. और एक और मजेदार चीज थी, बिकॉज बोनीता इज ए राइटर और डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर, एंड ऑल्सो सी सीज थिंग. अभी उसकी फिल्म कशिश में भी थी. तो बोनीता को जानने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा था कि क्या कशिश में थी, थोड़ी अवार्ड मिला है उसकी. कशिश में गॉट अवार्ड, या मैं अभी भी वो एलएसडी में खोया हुआ हूँ बोनीता के उस टाइम पे. But she got the award. So for me, when she came and she entered, उसी, और बहुत समय से मैं कुल्लू में सबको ढूंढ रहा था कि अच्छा ये कुल्लू है, ये कुल्लू, अच्छा ये कुल्लू देगी, this character is going to give, and Debakar is also liking someone, then someone, and then this, वो बहुत ये मजेदार क्या होता है ना सिनेमा में, और I think ऐसी ही फिल्म, the director like Debakar, who is every time saying, you know, they are trying to get it process में समझना, जानना, उसे निकालना जो चीज चाह रहे हैं, और उसके लिए लड़ना. जब इंडिपेंडेंट सिनेमा नहीं है, अगेन ये इट्स ए कमर्शियल इंडिपेंडेंट सिनेमा, आई डोंट नो व्हाट आई कॉल, बट दिस इज अ फिल्म where you are having fun. This is not a normal film ना, तो जिसमें कैरेक्टर्स के नुआंस से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं. तो मुश्किल रहता है यार, बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था. लाइक रियली हैप्पी व्हेन वी आर कमिंग एंड वी आर फाइनलाइजिंग, ओके कैन वी फाइनलाइज दिस. मैं कहा अभी तो फाइनल करते हैं, लेट्स डू दिस. So I'm knowing that कि अच्छा बोनीता भी चुन ली गई है, पारितोष चुन लिया गया है, या अभिनव को फाइनल कर लिया गया है, तो मुझे लग रहा था अच्छा अब काम मैं शुरू कर सकता हूँ ना, अब ये वर्क हो सकता है. वो सेम थिंग, वो जो कुछ कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स दिखे होंगे, जैसे बच्चा दिखा हुआ है फिल्म, द गाय इन अभिनव स्टोरी, जिसको अभिनव टॉर्चर कर रहा है उसे ना, उसे बाथरूम में, तो वो बच्चे को भी फाइनलाइज करना. हाँ, वो पूरी तरीके से अब रैगिंग चल रही है उसकी, और वो क्रिएट करना, एक बच्चे के साथ काम करना, कमाल की. That was also so conducting those conducting the workshops of those kids. दो चीजें हैं बस, बिल्कुल. एक बात बताओ कि जितने लोगों की वर्कशॉप हुई थी उनको पेमेंट मिली थी कुछ? मैं बोल देता हूँ, नहीं पेड नहीं थी ना. क्या है, नहीं मिली थी कुछ भी पेमेंट जितने दिन मुझे तो बिल्कुल पता नहीं प्रोड्यूसर की बात, प्रोड्यूसर से, एक्टर्स और वर्कशॉप डायरेक्टर से पता नहीं. ये आई थिंक पेमेंट प्रोड्यूसर को जैसे ही तुम नेक्स्ट करो तो उनसे पूछो, बट नो आइडिया, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं. क्योंकि यार व्हाट, ठीक है मतलब एक्टर्स honestly speaking, see that factor also comes in. Like I'm not bitching or doing anything about anything, but I'm just stating the fact that you go to a workshop, I mean for me it might be not, मतलब इतना पैसा शायद मैटर नहीं करता है, बट यू आर गोइंग इन दी जेटी, ऑटो में बारिश में आप रोज जा रहे हो, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, एंड उसका a month for a it's not, right. it's financially Bombay. also it's in Bombay. The problem is, and more than money also, you're giving 1 month of your time, right, where it's on the rope that you might or you might not.
Right. So for an actor, honestly speaking, it's a little unfair, Well, but yeah. not little. Very Hmm. for the Yeah. like at least you guys got the part. But for Yeah, those who didn't exactly. get the part, हाँ they couldn't audition for a month. They went through हाँ a process. They were not हाँ. paid, and all But these things must be talked about. मुझे अभी तो इस बारे में जानना है हाउ सबने एलएसडी देखी थी जब वो आई थी, कैसे देखी थी, क्या एक्सपेक्टेशन से देखी थी यार बचपन में, जब भी हमारा जितना भी बचपन था. मैंने तो अभी तक नहीं देखी है, to be honest. I still have to watch it. अरे मुझे ये यार सब आपका इंतजार था. I know. मुझे I'll लग watch रहा था it. कि कोई तो होगा जिसने नहीं देखी होगी. I know. That's me. Guilty. हाँ, and Nice, what nice. उस what टाइम you पे want to जब share, Abhinav? मैंने बात तो शुरू इसके दौरान देखी जब वर्कशॉप्स कर रहे हैं ना, हाँ, तब मुझे Hmm. ऑनेस्टली पता चला कि एलएसडी नाम की एक फिल्म है और Really? या उससे पहले लाइक आई हैडंट वॉच लाइक आई हैड वॉच दिवाकर्स अदर You फिल्म. haven't heard that song, Love, Sex और धोखा डालेंगे? You didn't see this one? नहीं यार, मतलब मैं ना बहुत ही टीवी के परे होता हूँ, तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था. फिर यार, मुझे तन्वी ने बताया कि फिल्म देखी है. मैंने बोला नहीं. तो फिर मैंने बोला यार देख लेनी चाहिए बिफोर. तो जैसे ही मैं लॉक हुआ उसी समय मैंने फट से फिल्म देखी. मैंने बोला ओ राजकुमार मैं भी ये करके फिल्म नहीं, sexy film है. I'm sure it's sexy film. Nice. गुड फिल्म, वेरी नाइस Do फिल्म. it. Even though I've not watched it. But yeah. Yeah, what yeah. you, Abhinav? when it released उस टाइम पे तो मैं अलाउड ही नहीं था थिएटर में. अच्छा. ये बच्चा था. और अभी और जब अभी मतलब जब वर्कशॉप्स में हम लोग चालू किए और ऑडिशन जब हुआ था उस टाइम पे दिवाकर सर ने बोल दिया था कि देखना मत अभी. हाँ, उन्होंने मना कर दिया था कि प्लीज डोंट वॉच इट बिकॉज इट इज नथिंग गोइंग टू बी लाइक दैट. हाँ. तो तब तक नहीं देखी. अभी सितंबर में मतलब आफ्टर द शूट एंडेड पहली बार देखी और मैंने सर को मैसेज किया, सर क्या फिल्म है. बोला मेरी नहीं है अब. सो ही वाज लाइक आई हैव डिसोन्ड द फिल्म, इट्स नॉट माइन एनीमोर. But for me, actually, हमारे यहाँ पे स्कूल में जब लव सेक्स एंड धोखा आई थी, हम स्कूल में थे, तो हमें मतलब ऐसे पायरेटेड वर्जन कहीं से जुगाड़ के ऐसा लगा था कि बहुत ही अडल्ट फिल्म होने वाली है हाँ. और ऐसा है. तो हमने जुगाड़ के ऐसे मैंने बचपन में देख लिया. आई रियली लव्ड इट, बट इट वाज अबाउट लव एंड धोखा. बस. पर ऐसा हमें कुछ Yeah. सेंस हो गया था. मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी व्हेन आई हर्ड अबाउट कि दूसरा पार्ट बन रहा है. मुझे सबसे पहले रितेश सर ने ही बताया था और मैं बहुत एक्साइटेड थी. और थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलता रहता था कि वर्कशॉप्स ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है. और आई हैड प्रिटी हाई एक्सपेक्टेशन. मुझे लग रहा था कि अब टाइम और भी चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है, तो विथ ग्रेट राइटर्स कमिंग टुगेदर आई थिंक कि बहुत ज्यादा और टॉप नॉच होने वाला है. I was slightly disappointed from few parts, पर anyways the topics were fresh, untouched. अभी तक बात नहीं हुई थी इन सारी चीजों के बारे में मेन स्ट्रीम में इस तरीके से. और हाँ, कुछ मिसिंग था. What do you think about that? क्या मिसिंग था? I can't really compare ऐसे because I have Just not not the seen film, it. just not the film. Even if you can talk about the marketing of it. I क्योंकि honestly feel this film still, and I mean in my personal thing that आने वाले 3-4 साल में it will be appreciated because हाँ, I feel that it has something which people are make somehow yeah. not able to connect या जो भी है. बट मुझे हाँ, ऑनेस्टली लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में it will have a very good impact. हाँ. मार्केटिंग वाइज तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट एक चीज जो मुझे लगी कि बेटर हो सकता था वाज द ट्रेलर एंड द टीजर. क्योंकि जो फिल्म है और हमने तो की हुई है, और जब मैंने टीजर और ट्रेलर देखा मैंने बोला यार it could have been cut better because the film is much more than what it is being shown in the trailer. Right. That was something which I felt could have been better, and मुझे लगता है कि 3-4 साल में लोग appreciate करेंगे hopefully.
मैं जिस तरीके से बताऊं कि हम्म, जब LSD 2 का ट्रेलर आ गया था पब्लिक में और आप लोगों ने शेयर कर दिया था, उसके बाद भी मुझे हम लोग फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया, किसी को पता भी नहीं था कि LSD 2 हाँ आने वाली है, ऐसा किसी को हाँ, पता भी नहीं था। लोग अभी देख रहे हैं जब नेटफ्लिक्स पे आ गई है। हाँ हाँ, हाँ अभी अभी देख बहुत रहे हवा थोड़ा चल रहा है। हाँ अभी देख रहे हैं। और वो भी मतलब क्यों नेटफ्लिक्स भी ऐसा कुछ बहुत प्रमोशनल चीजें कर नहीं रहा है विद द फिल्म। ये सारी चीजों की बात, मतलब हाउ मच कैन यू कंट्रोल दिस, और डू यू हैव अ से इन दिस कि मार्केटिंग को कैसे होता है? मार्केटिंग यार कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्शन कंपनी ना, ये पूरा एक हाँ हाँ, मतलब कोई भी सिनेमा जब बनता है तो बिल्कुल। एक प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, हाँ हाँ, इसलिए उसे की प्रोडक्शन कंपनी है। और वो प्रोडक्शन कंपनी बिलीव करती है किसी चीज पे, तभी वो डायरेक्टर के साथ, क्योंकि एकता कपूर प्रोडक्शन, दिवाकर प्रोडक्शन और वो सारी कुछ चीजें हैं। अब वो अभी हिंदी सिनेमा का कंडीशन मुझे लगता है अभी भी बुरा है, इसीलिए पायल कपाड़िया जैसे डायरेक्टर को अलग यूरोपियन फंडिंग लेकर के कहानी सिनेमा कहना पड़ता है। वो हिंदी में एक हिंदी सिनेमा, आई नो हिज लैंग्वेज इज मलयालम एंड हाँ इट्स हाँ, इट्स आल्सो अमेजिंग थिंग दैट्स हैपनिंग। हाँ सो हाँ, अभी क्योंकि अलग अलग चुनना पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में अच्छी कहानियों का, जिसमें अच्छी कहानी मैं कह रहा हूँ, अब जैसे भी हो, हाउ पीपल आर टेकिंग इट, हाउ यू फेल्ट इट, हाउ अदर पीपल विल सी इट, और मुझे क्या लगी टू, मुझे लगता है हर सिनेमा के पीछे आपको अच्छी नहीं लगना वही मजेदार चीज है, क्योंकि देन देयर इज ऑलवेज बिकॉज द प्रोसेस एंड मेड इट, एंड लेटर ऑन आप जब तैयार हो या अभी भी जो तैयार हो, जिस प्रोसेस हम देख रहे हैं, जिस फीलिंग से देख रहे हैं, कुछ समय बाद देखें तो हो सके एआई वर्ल्ड का और कनेक्ट कर पाए, या कुछ समय हम देखें बिल्कुल तो कुछ, डेफिनेटली। और और मुझे मुझे बहुत मजेदार लगता है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कई सारा, खुद कुछ होते हैं ना प्रमोशन जैसे, अब कई सारी चीजें आ रही हैं लोग हाँ, यूट्यूब पे, कि लोग रिव्यू लिख रहे हैं कि क्या बना रिव्यूज दिया है, क्या कर रिव्यूज दिया है। बहुत अच्छे आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, कई रिव्यूज ऐसे आ रहे हैं ना लेटर ऑन समटाइम, वो इंस्टा पे कुछ अजीब से लोग हैं, क्योंकि आजकल सबको रिव्यू करता है। हाँ, तो एक गांव का बंदा भी रिव्यू कर रहा है, एक शहर का बंदा भी रिव्यू कर रहा है, एक जो सिनेमा नहीं भी देख रहा वो भी रिव्यू कर रहा है, सिनेमा देख रहा वो भी रिव्यू कर रहा है। तो सबके खुल गए, मार्केट खुल चुका है, एक आदमी नहीं है कि फला क्रिटिक आकर के बोल रहा है, सबको बोल रहा है, और सबका, और सबसे बात सब एक्सेप्टेंस हो रही है। मुझे लगता है यही कुछ मार्केटिंग होगा। LSD 1 की भी मार्केटिंग अगर तुम्हें ध्यान रखो, क्योंकि LSD बिल्कुल 1 लोगों बिल्कुल। ने क्या देखा था, हाँ पीपल सॉ नो बिग एक्टर ना, अभी भी मेन स्ट्रीम सिनेमा का है कि भैया चेहरा किसका है, पारितोष का चेहरा है, बोनीता को लोग जानते हैं कि अच्छा बोनीता शी इज एन एक्टर, वो ट्रांस भी है और अपने आपको कह रही है, अभिनव का एक चेहरा है, वो भी हाँ, एक्टर, तीन चार एक्टर, बहुत सारे एक्टर हैं और ये काम कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पे कोई नहीं जा रहा है। बट द काइंड ऑफ मार्केटिंग की जा सकती थी, हो सकती थी, एक ऐसा सिनेमा है जिसका मार्केटिंग का तरीका अलग होना चाहिए, और बिल्कुल वो एक तरीका, और आज का टाइम ऐसा है कि थिंग्स आर चेंज, वर्ल्ड बदल बिल्कुल चुका है, बिल्कुल। और हम एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी कह रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया ही है, तो इसकी करेक्ट, मार्केटिंग भी हो सकती थी बहुत कमाल की। बहुत बट अगेन कमाल मुझे, की। द पॉइंट इज कि मुझे तो हाँ बहुत बट, सारे ऐसे तो मार्केटिंग आइडियाज आ रहे थे जो बहुत क्रेजी हो सकते थे और फिल्म को आप किड्स। मेल करो, मुझे लगता है तुम्हारे डायलॉग और ऐसे और लोग भी हो अभी बोनीता के और या एनजीओज में, जहाँ पे कुल्लू जैसी जो संस्था के लोग हैं वो हाँ नहीं हो सके देख पा रहे हैं, वहां पे नहीं पहुंच पा रही है फिल्म, हाँ हाँ, या जेंजी के पास वो मार्केटिंग नहीं गई है, जो जेंजी, जो अभिनव के जो कैरेक्टर्स हैं वो देख पाए, हो exactly. सके वो बात कर रहे हैं, वाओ दैट्स सो अमेजिंग मैन, दिस व्हाट एआई हाँ स्टफ, वो, बट दे हैव टू गेट इट, if और they सेम only विद द, if yeah if only they're exposed to the story, if only they're exposed to game puppy story enough, then they will generate the interest, I you know. honestly, I honestly feel that the game पापी का आई जो थिंक, कैरेक्टर था, it would have been a massive hit in Gen Z. Yeah. Like Oh for गेम sure, पापी yeah, स्टार हो for जाता अभी sure, तक। for sure. Honestly speaking, इतना एक इतना तो कनेक्ट करता लोगों नाम को। भी इतना यूनिक था, या या मतलब क्लिक वाला था कि हम्म, पपी को लेके कितनी सारी चीजें हो सकती थी। हाँ, यूट्यूब ये यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन हो सकता था। yeah. यू और रियलिटी शो का पार्ट था, रियलिटी शो से के अराउंड कोई मार्केटिंग नहीं हुई। बिग बॉस पे जाते हैं लोग, देयर इज एकता कपूर प्रोडक्शन का ही एक रियलिटी शो भी बना। सो लाइक ऑल दीज थिंग्स कुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। और बात ये है ना कि अनफेयर मुझे ज्यादा इस बारे में लग रहा है ये सब कुछ, क्योंकि ये सब लोग एक महीने की वर्कशॉप, अपना काम वाम सब कुछ छोड़ के बैठे हुए थे इस फिल्म को लेके, और
उसके बाद इनफ अटेंशन नहीं दी गई उस पार्ट पे जहां इनको वो पेमेंट मिलता, एक्चुअल पेमेंट मिलता, नॉट जस्ट फिल्म पेमेंट. इट इज एक्चुअली अनफेयर बिकॉज अगर आप वर्कशॉप की बात करो, मैंने तो आज चीज को लेके भी सुना है कि वो लोग भी 1 महीने की वर्कशॉप करे, बट उन उनको तो बहुत जरूरत थी. But yeah, see, Archie's में they have a takeaway, no? हाँ They exactly. had a workshop for a month or whatever, जितना भी मेहनत किया उन्होंने. But in the end क्या है कि वो लोग फिल्म जैसी भी हो एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन है कि लोग उनको पहचानने लग गए ना. बिल्कुल बिल्कुल एक एक इंसान को. और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी फिल्म LSD2 बहुत मतलब it is a good film and I am Yeah, in yeah, this definitely. at the current times we have made a good decent film, right? Yeah. But yeah, I really hope that Karm, people people will know it somewhere. could have reached, but I have a feeling कि Wider 2 साल audience. बाद बोलेंगे अरे क्या So, काम देखो किया था तो यार. That's डीबी की the एक ऑलरेडी फिल्म है 30 जो अभी तक नहीं रिलीज. जो वहां पे कितने वो नाम, जो एक नाम था, yeah. जिनका एक नाम था, जो लाइक नसीरुद्दीन शाह है, मनीषा कोइराला है. मैंने फिल्म देखी, बहुत कमाल की फिल्म बनाई. और क्योंकि आप कैन नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस द फिल्म, लेटर ऑन यू विल हियर इंटरव्यूज ऑफ दिबाकर आल्सो व्हेन ही इज सेइंग दैट इट्स नॉट रिलीज. एक एक अलग सा टर्म, बहुत कुछ चल रहा है ना. अब वहां पे बहुत पूरी टीम लगती है. एक सिनेमा इट्स ए कोलैबोरेटिव वर्क. वो एक हमेशा कोलैबोरेशन में ही बनता है. एक्टिंग के का बिल्कुल ही उम्दा प्रदर्शन, बिल्कुल ही उम्दा प्रदर्शन. आई थिंक कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे there is no dialogue, there is nothing, just expressions. कुल्लू का कैरेक्टर ने कितने गूज़बम्प्स दिए हैं थिएटर. आई वॉच इट इन थिएटर. अभी पता नहीं जो लोग ओटीटी पे देखेंगे उनको वो कितना लगेगा, बट टू वॉच इट इन ऑन अ बिग स्क्रीन, अ कैरेक्टर गोइंग थ्रू सच एन एक्सपीरियंस, गेम पापी गोइंग थ्रू सच एन एक्सपीरियंस, ऑल्सो नूर का कैरेक्टर, मतलब वो सारी चीजें, वो डांस नंबर तो यार आई डोंट थिंक आई एज अ कैन डांस लाइक दैट एवर इन माय लाइफ. पर वो सब कुछ, वो सारी चीजें इतनी ब्रिलियंट थी ना कि बस ऐसा लगता है कि थोड़ा और कर देते तो शायद थिएटर फुल रहता यार. और बहुत एंजॉय करते फिल्म. ऐसा भी नहीं है कि किसी भी लेवल पे जाके बोरिंग होती है या कुछ भी होती है. बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग हाँ फिल्म है. करेंगे करेंगे लोग. गुरुदत्त ने प्यासा बनाई थी. But you एडवांस know, गुरुदत्त मिल गया. honestly प्यासा एक लोगों और बाद चीज मिलेगा. एक हाँ और चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी है हुआ नहीं हुआ वो सबसे मतलब कि I would just give credit to the production जो भी है जैसा भी, हाँ and Dibakar also especially, and the production also that they believed in us. या या मार्केटिंग बहुत में ट्रू. उनका लेना देना है. फॉर मी आई एम जस्ट ट्रू. हैप्पी दैट सी आई एम मी अभिनव एंड बोनिता आर राइट नाउ हियर एबल टू हैव दिस इंटरव्यू बिकॉज यू नो दे बिलीव्ड कि एक एक एक्टर जिसका इंस्टा तो कुछ है ही नहीं फिर भी आई थिंक ही इज अ डिसेंट एक्टर, वी शुड ट्रू. ट्रू. trust ट्रू. on him. And then there is Abhinav, बिल्कुल. who is a new, you know, around. He's just come. Mira Road का लड़का है. You know, they've trusted him and they've trusted Bonita also. So I would, मतलब मैंने अभी तक बोला नहीं बट मेरे को अचानक से याद है कि यार I think I should also give credit to them for this particular thing that you know they believed in us and we are here for that very reason. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत आसानी से अभिनव के कैरेक्टर हमारे पास बहुत सारे आए थे जो हाँ इन्फ्लुएंसर है बड़े, और मार्केटिंग आराम से हो जाती है. और हो सके कोई बिल्कुल अपने आप प्रोडक्शन करता, कंपनी करता, तो वो एक्टर हाँ पे नहीं. और क्योंकि वो बिलीव दिबाकर, और दिबाकर का बिलीव जिस तरीके से वो कास्टिंग में, आई वाज टेलिंग कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी हर आपके एक्टर को देखना. नॉट थिंकिंग कि अच्छा इसका इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा इंस्टा का वो है तो उसको ले लेते हैं, पारितोष के कैरेक्टर को तो किसी. और वही बहुत सारे रहता है. ऑप्शन थे, वो सारे आ रहे थे, बहुत हाँ सारी चीजें आई थी, बट नॉट गोइंग फॉर दैट. वो एक मार्केटिंग की yeah. तरफ से अगर फिल्म बनाई जाती तो आराम से हुआ जा सकता था. ऐसी हो बट सकती है. हाउ इज वर्किंग विद उर्फी जावेद. Oh, first, I remember we before the shoot we had this workshop a day before, हाँ and the person who sent the messages that tomorrow we have the workshop,
I thought that it is going to be Ritesh sir और मैं रहूंगा बहुत दिनों के बाद, क्योंकि शेड्यूल के बाद हो रहा था काफी बड़ा। हाँ तो बाद में she told me कि नहीं नहीं, दिबाकर सर is taking the workshop and there will be Urfi as well। मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया यार, मैं डर गया because I am meeting someone first time from the influencers, like you know, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे डर लगा था, what if I say something wrong in front of her, because I was like very loud, being a loud mouth at that time। मैं हाँ कुछ भी हाँ मुंह में जो आता था बोल देता था, वो आदत पड़ गई थी। वहां पर जाकर के she was very fine, she was very chill and it went on really good and I think even she liked the work and we had a good moment। You had a बोलो good बोलो भाई। moment. And what was देखो मुझे the पता था, most मुझे पता था। interesting scene for you guys? मतलब कौन सा ऐसा सीन था जो बहुत ही आसानी से हो गया या फिर बहुत ही मुश्किल लग रही थी, पर कुछ ऐसा like what was the most interesting scene from the मैं film? मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ। हाँ सो एक सीन है उसमें जिसमें मैं ओमेगल पे बात कर रहा हूँ लोगों से, हाँ और जब हम लोग रिहर्स कर रहे थे इस सीन को वर्कशॉप में और रितेश के साथ में, तो मुझसे हो नहीं पा रहा था और मैं पारितोष को बिल्कुल नहीं जानता था। पारितोष का लुक टेस्ट चल रहा था उस दिन। हाँ अह, तो मेरे सामने कोई लड़की थी नहीं और मुझसे हो ही नहीं पा रहा सीन। मुझे ये आइडिया था ही नहीं कि पारितोष लड़का है। पारितोष हाँ अपने पूरे मेकअप में एकदम नूर बन के घूम रहे हैं वहां पे। नितेश सर ने हाँ बोला पारितोष जाओ, मुझे अभी भी सुनाई नहीं, तो सर ने बोला नूर यहाँ आओ। हाँ नूर आके मेरे सामने बैठी, हाँ मैं नूर को ऐसे ही देखे जा रहा हूँ और वो सीन वहीं से निकल के आ गया। भगवान। मतलब 2-3 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस सीन को निकालने का, वो प्यार और एक क्या हैप्पी कहते प्राइड हैं मंथ भाई। नॉटीनेस। हैप्पी प्राइड मंथ। Shit. Thank you. हाँ परितोष। वहां पे आकर बैठे, वो सीन तुरंत बाहर आ गया। काफी ही दैट वाज द पारिवारिक माहौल मोस्ट था फेवरेट। सेट का। हाँ एंड फॉर बहुत यू ज्यादा बहुत ज्यादा। वनिता? मेरे लिए तो आई थिंक अरे जो घर पे होते हैं वो वाले सीन मेरे को बहुत अच्छे लगे। मैं और पीयूष उसमें लाइक इट वाज द मोस्ट चिल डे दैट आई एवर हैड ऑनेस्टली। सनलाइट आ रही है, सनलाइट सेटअप कर रहे हैं, यू नो अच्छा सा मोमेंट चल रहा है, कुछ ज्यादा हैवी भी नहीं था, इमोशन स्टफ लाइक दैट। रील बनाने वाला भी है तो बहुत क्यूट था, और हाँ हम हाँ लोग को प्यार के पंछी वाला भी था, इट वाज क्यूट। सो वो वाला दिन तो बहुत मेरे लिए बहुत मजेदार रहा बस था। प्यार। Piyush was amazing actor. We gelled up very nicely. It was amazing. And also, like when I saw the film, and when I saw that, that song, Gulabi Gulabi Akhiyan, that start to हाँ play when you see, like I could not see myself in that, and I was like, so I'm like, so कितना प्यारा है ये इन दोनों का कहानी. They are living in this house. They are so happy. Like I could not see myself in that, and I fell in love with that. With these two people, it was so nice, and song was vibing so nicely with them. हाँ I'm हाँ like, ये कितना प्यारा. Just blew me away. I'm like, I'm so glad I'm part of something like that. I could not see myself in that. That was हाँ amazing moment. एंड पारितोष? यार मेरे लिए ना मेरे सबसे इंटरेस्टिंग सीन्स मुझे बहुत जिसमें मजा है वो स्वरूपा मैम के साथ था। वो I'm sure. इतनी Yeah, क्रेजी एक्टर है ना, मतलब इतना मजा आता है उनके साथ काम करने में। ब्यूटीफुल yeah, सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। या तो वो जो झापड़ वाला absolutely. सीन आप देख रहे हो, हाँ हाँ तो उसमें क्या होता है, पहले वी ट्राइंग कि ऐसे हवा में वी ट्राइंग, एक हाँ बार हाँ हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हवा में ट्राई कर रहे हैं, डीबी सर आके बता रहे हैं थोड़ा ट्राई करो दूर I से हवा remember में there. है, और सब सेट पे। Yeah. तो मैम आती मेरे पास, बोलती सुनो मार देना असली में, और सिर्फ मुझे पता है उधर, नोबडी एल्स नोस, एंड एक्शन होता है, एंड मैं मारा और वो गलती से थोड़ा ज्यादा ही जोर से लग गया, एंड एवरीबॉडी लाइक the whole reaction was like shit. हाँ And She's then such a true actor. yeah, That is the only way it would have worked. Honestly, it would not have yeah, worked because otherwise. And she अदर वे knew में how it इम्पैक्ट होता ही नहीं है, वो शी इज सो गुड इन, इतने सालों से कर रही है, शी इज लाइक, फिर आती बोलती क्या तुम हवा में मार रहे थे, चलो हाँ खत्म करो आगे बढ़ो। Yeah. वो सीन एक्चुअली फन Sweet. है, फन था उस scene। स्वीट हार्ट है वो टीम का, वो बहुत हाँ बहुत प्यारी इंसान है। इट वाज सो मच फन टू वर्क विद हर। जैसे मान लो कि मैं तो फिर भी थर्ड एंगल से देख रही हूँ कि बस ज्यादा नहीं है, या मुझे भी मतलब एक थर्ड आई से देख रहे हैं, पर आई एम श्योर दैट यू ऑल मस्ट हैव गॉटन अमेजिंग डीएम्स या ऐसे टेक्स्ट, कुछ ना कुछ तो ऐसा आया होगा देखने के बाद, आई एम डैम श्योर।
how is it like personally for you after the release, theater release, OTT release के बाद अभी कैसा जा रहा है? But I think it will be next to start Yeah, start. because I love listening, hearing especially the mother section because मुझे याद है बहुत सारे personal sharing हम because ना when you create actors के साथ at time then you try to know personally a lot of stuff to get understand the character also somewhere एक है और उस समय बोनीता को सुना और after this whole workshop and the film उसने देखा मेरे लिए बहुत personally ये था कि कैसा लग रहा है बोनीता को after seeing the film and overall and then बोनीता ने जो बातें मुझसे शेयर की and the her mom and her connection with the mom and overall बहुत सारी चीजें वो बहुत प्यारी है मुझे लगता है ये बहुत कुछ पता नहीं क्या होगा सिनेमा कितना लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे बट द थिंग दैट हैपेंड स्पेशली इवन बोनीता शेयर्ड और अभिनव एनीवन it is very special for me. I love to know Bonita. I love to. I think people will love to also know. Yes, sir. Hmm. कैसे कैसे DMs आ रहे हैं? DMs are all types of DMs, to be honest. All good DMs, all creepy DMs are always there somewhere down the line, you know. So that is there. But as Hitesh sir said, my mom, I mean, like, she's more of an influencer on WhatsApp than me. And a lot of my relatives would be following that story. The thing is, it is changing in a way that, देखो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है ऑनेस्टली देखो कि फिल्मों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप 1000 बार ट्रांस बात कर लो इट मे बी नॉर्मलाइज ओके it becomes after a while it becomes little monotonous it becomes too much over talked about when someone talks about in rural places that's when it actually creates an impact okay so my family comes from a very rural place my mom is a very social person she is connected to the entire society राजपुरोहित समाज राजपुरोहित ये राजस्थान का समाज है कई समाज में कनेक्टेड है वो बहुत कनेक्टेड रहती है सबसे तो वो ग्रुप्स में भी शामिल है कई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं समाज के ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे अगर मेरे बारे में इस तरीके से बात हो रही है ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे लिए ये बहुत बड़ा चेंज है मैं वहां से आई हूँ वहां पे मुझे डर लगता था इसके बारे में बात करना भी यू नो आई वाज शिट स्कैर्ड that if someone knows about it I'll be humiliated to death and that was really the case because वहां पे कोई ऐसा कुछ ऐसा even LGBT का जी भी नहीं है वहां पे where do you find the representation of trans people you see वो कितने कितने गंदे नाम वो भी रूरल प्लेस में बहुत अलग सेटिंग होती है एक दो तरह की दुनिया चल रही है तो रूरल प्लेस में इस तरीके का चेंज देखना आई थिंक यू नो एंड दैट इज द पावर ऑफ मीडिया एंड द फिल्म you know that gave me empowerment and that's how my story mattered to those people and that's how they started taking me more seriously and they started to see me with dignity so कल को जाके अगर उनका बच्चा भी अगर कुछ इस तरीके की बात करेगा तो उनके सामने मैं आऊंगी because I am their live example I am the live example and representation of someone like me who's queer who's trans person you know to create such representation in that space is a big deal and I continue to work on things like that. This is one of the reasons why I like the character of Kullu as well because it speaks for that community and majority of the people. So that's been amazing response like that. Yeah. I'll just add one thing on this. तुम्हें कितने अभी हम देखेंगे पूरी फिल्म एक जेंडर पे बात कर रही है और जेंडर पे खुल के बात कर रही है. I'm talking not transgender is a very big umbrella term. If you see Abhinav's character is also talking the gender issue. Paritosh character is also बिल्कुल पूरी masculinity पूरी trans एक फोबिया जो लोगों के अंदर है उस पे भी बात कर बहुत सारी चीजें हैं when you see the layering और वो उस पे देखो कई ट्रांस एक्टर्स को एक मेन कैरेक्टर मिला सिर्फ ऐसे नहीं करके कि आए हो तुम और आकर के और सिर्फ कार के पास वॉक की और या उस तरीके से सिर्फ ना आप कैरेक्टर को एक फिक्स कर दिया था तुम फिल्म में देखोगे कई कुछ कैरेक्टर जो हैं जो सो कॉल्ड हम स्ट्रेट कहते हैं वो भी कुछ ट्रांस एक्टर ने प्ले किया है जो तुम्हें पता ही नहीं होगा और तुम्हें लोगों को पता नहीं है बट फिल्म में इस तरीके से एंड आई नो बिकॉज आई वर्क विद हर शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड और हम बात करते समय मैंने कहा दिवाकर लेट्स टेक दिस और कितना कमाल से एक डायरेक्टर का बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को लेकर आना ऑडियंस को सामने की ऑडियंस को नहीं पता उनको लग रहा है वो बट किसने किया बिकॉज यू कटिंग दैट पार्ट ना क्या है जेंडर ट्राई ट्रांस you're making it character as a character and that's beautiful how it's coming out exactly and you're seeing that character as a character that character exactly
story And does that's not the revolve around the gender. You see, and they yeah really yeah serve the for purpose. They serve the purpose. You know, they did that mm. job and they worked in the film. They contributed in the film as much as it was required. So, you know, that was amazing. I mean, I really love, and that's why I'm also grateful and I'm happy that I'm part of such a film, because, you know, trans people are playing such normal, ordinary characters in the film that you don't even realize they're trans. You know, why can't we have this representation where, you know, that gender identity is not the only big deal? You know, we can be villain powerful, we can be whoever we want, like we can be whatever. More human than yeah villain. yeah Yeah. और पारितोष क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? मतलब अभी लोग लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यार ऑनेस्टली बताऊं तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल है उनको अब जाके रियलाइज हुआ कि ये कैरेक्टर मैं प्ले किया है। और तो मतलब जो ऑडियंस है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि आई एम द वन हु प्लेड नूर। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है। एंड मतलब जो मतलब मेरे फैमिली और फ्रेंड्स जिसने भी देखा दे सेड यार यू हैव डन अ फैब जॉब, दैट्स ऑल। काफी ही ठीक है। अब ना मेरे ख्याल से सब लोग थोड़ा सा अलग ही चले गए सवाल लेकर। उनका सवाल था डीएम्स कैसे आ रहे हैं। हाँ DMs response, हाँ ठीक है, हाँ डीएम्स रिस्पॉन्स जो भी है। हाँ DMs, डीएम हाँ चलो मतलब बिना सॉरी करेक्ट। शुरुआत में मेरे को बड़ा एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स था। हाँ मतलब हाँ अजीब अजीब चीजें आ रही हैं, oh लोग कुछ भी shit बोल दे I रहे हैं don't know डायरेक्टली। सीधे बोलते हैं कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। मैंने बोला कि आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई एम स्ट्रेट बाय द वे। So he's like, oh dude, so you did so well. I mean, I couldn't even think that you were straight. You look so gay. really That what that's what he wrote after watching the film. इतना अच्छा So I एक्टिंग was नहीं like, करना oh. चाहिए था, which बहुत channel रियल it was रियल। So that was one of it. But फिर बाद में हाँ after the film released, क्या कहते हैं बाकी, it was all mixed response. Some a few people were like, film was very confusing, but I liked it. And मतलब it कुछ was लोग गालियां भी आई हैं, कुछ तो like क्या कर लिया भाई, ये कर लिया वो कर लिया। इस बात पे But गाली eventually, बढ़िया बढ़िया। घर वालों का response was what I'll cherish for life. That my father and my Yeah. mother, they loved the film, and which I was not expecting. That मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी was asking me since the shoot got over and it was in the edit post production, जितने भी दिन चला मम्मी मुझे बस ये पूछ रही थी, यार तुम नंगे हो गए हो फिल्म में, मतलब कुछ होता नहीं, देखते रहो I'm क्योंकि I'm सब I'm लोग loving देखेंगे। it Rivina. तो मुझे पूछ रही थी, उनका यही सवाल था। मैंने बोला नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, और जो हो रहा है वो भी एक रीजन से हो रहा है उसके अंदर, आप समझो बात को। और फिल्म देखने के बाद में मेरी पूरी फैमिली ऐसे ही रिएक्ट की थी कि उन लोगों को समझ में आया मेन बात है, जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो दैट्स व्हाट आई चेरिश फॉर लाइफ। So I really hope कि अभी अभी it's just the beginning. I think धीरे धीरे लोग Netflix पे आने के बाद डेफिनेटली देखने वाले हैं और फिल्म का एक्सपीरियंस आई थिंक और आप लोगों को मिलेगा डीएम्स में और रिस्पॉन्स। एंड आई बिलीव कि एलएसडी 1 की तरह इसका भी रिकॉल वैल्यू आएगा। पीपल विल वॉच इट लाइक 5 years डाउन द लाइन। और आजकल तो री रिलीजेस भी हो रहा है, क्या पता थिएटर में वापस से लग जाए। But whatever it is a very special film. I loved it. There were few parts I didn't like, but बाकी सब सही था। You Good. guys did an amazing, superb job. I hope आप लोगों को और भी काम मिले। बढ़िया बढ़िया रील्स वील्स बना लो, थोड़ा सा आप लोग प्रमोट कर दो। ये नहीं बनते। हम फिल्म बनाते रहे और तुम हमेशा हमारा इंटरव्यू करते रहो यस और हम ऐसी अच्छे डायलॉग्स करें फिर जिससे सिनेमा देखने वाले लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज हाउ यू स्टार्टेड एंड द फॉर्मेट दैट यू आर यूजिंग एंड मेकिंग वेरी कंफर्टेबल स्पेस, क्योंकि डायलॉग स्टार्ट हुआ है कुछ समय पहले, बट यू आर फिल्म लवर फ्रॉम लॉन्ग ऑन। आई सॉ यू, तुम्हें सिनेमा से कैसे इतना प्यार है और तुम्हारे पीछे जो लगे हुए हैं ये कमाल के पोस्टर्स ये ऑलरेडी बताते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी स्पेस है। 8:30 बजे का शो देखने गई थी सुबह सुबह जिस दिन रिलीज हुई थी LSD 2। क्या बात है यार, I क्या know, बात I है। बिगेस्ट बिगेस्ट फैन अकेले थी मैं थिएटर में, 2 लोग और थे। know. रुलाओ मत यार प्लीज। ओके
ये नहीं बताना। नहीं बताना। हम्म, पर नहीं, बहुत ही तो अमेजिंग लग रहा है। आई थिंक आप लोगों को भी जो भी एक्सपीरियंस मिला वर्कशॉप से, इट जस्ट मेड यू अ बेटर एंड अ वेरी हम्बल एक्टर, बिकॉज कभी कभी एक्टिंग सर पे चढ़ती है, पर आप लोग जिस तरीके से हाँ, टूटे बिखरे जुड़े, आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी यू गाइस देयर। ऑल द Thank you thank so you, much for thank you, having thank us. you, thank Thank you. you so much. Yeah, it's nice talking.